Sir, Good morning. sir, Ah, welcome, sir. Sir, welcome. Good morning to everybody. Good morning, sir. Let me introduce our principal, sir, Dr. Sanjay Kumar Sampath, sir. Sir, we heartily welcome you, and I would request you to motivate all available there in the webinar. So many faculties, experienced faculties, and our gurus also from MS University, Baroda. So many from Girls Polytechnic of different fields in textile, and so many alumni of this department, current students and passed out students. And one special ma'am, Aparna ma'am, she is also from our department, but she is very experienced and she has specially joined from Bangkok. So, Nice to hear about this. yes, sir. So I would request you to motivate all the students and say a few words. Hello. Good morning once again to everybody. Good I am very morning. much happy that textile department has organized this webinar on garment design by CLO software. So see, before some years, पहले कुछ साल पहले कंप्यूटर वगैरह का यूज पहले बहुत लिमिटेड था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है तो हर जगह पे कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशंस बहुत यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसके बारे में लर्न करें, आगे उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो वो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। एंड आई वेलकम द स्पीकर प्रशांत वर्मा सर। So again, best wishes to everybody. Thank you very much. Thank you so much, sir. Verma, Prashant? Yes. Prashant, are you ready? Yeah, I am ready. Okay. Let me first introduce our speaker for today's session. Prashant, at start only, I thank you for sparing your valuable time for this webinar. And let me introduce Verma Prashant. He is a consultant of Kamla Tech industry. He is basically textile technologist. He has done his bachelor's in textile technology from MS University of Baroda, and he is a gold medalist from that. He has done his master's in fiber science from IIT Delhi. He is again a gold medalist over there. He has various years of research experience in so many places. He has previously worked with Honeywell, Arvind Limited, Indian Council of Agriculture and Research. He has 12 patent application in protective and smart clothing and 2 patent grants. He has developed industrial textile products used in filtration, belting, anti-ballistics, composites, and personal protection. Currently is working on smart clothing and wearables products for fitness, healthcare, and personal protection applications. And he is a very good friend of mine. I am proud to say that he was a batchmate of mine from MS University, Baroda. So, Prashant, I would like to give the to you. Hello. Thank you, Unnati. Can you hear me? Yes, Prashant. Okay, thank you. Good morning and namaskaram to everyone. A very warm welcome to all the dignitaries and obviously the students, which were supposed to be the prime audience. But I think on the hindsight, Unnati has also invited a lot of my gurus.
So let's see if I'm able to keep up to that their mark. I think somebody's microphone is on, so it's creating some disturbance. If they can shut it down, it would be. I request everyone to keep the microphones off, please. You are on mute. Yeah, I'm sorry. So those who already know me, for them this would be a surprise, like Prashant Verma and then the fashion or garment design kind of a topic. They are on two different poles. So but I will still try to do this. So basically, what happened is when I was working on some of the smart clothing project, and initially also from my bachelor days when I was in doing my bachelor's degree in MSU and then masters. So a lot of time there were occasions where we or I wanted to do something in terms of designing a garment, but then I see it as there's as a lot of limitations. So like one is that you have to understand the patterns, how the patterns are done, and then there is a lot of sizing, how you so there's armhole sizing and then the shoulder stroke. So there are a lot of technical terms and all, and I was not very much interested there. So that was one of the thing, and the way in which this used to happen earlier was, or the garment designing used to happen earlier was, you will have to obviously have a size chart. If you don't have a size chart, you can still begin on a chart paper with some kind of patterns. Once you make those patterns, then you have to match the patterns properly, and then you have to then go ahead and cut it on the fabric, and then you can use a body form on which you can just pin up the patterns and just have a. Yes, Unnati, you are saying something? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Okay, so yeah, so so you have to do is you have to put the patterns on the body forms, and then you can get a feel of it, that how this garment is going to look and all. Prashant, Yes. sorry to interrupt you. I would request you to go for both the languages if possible, Hindi, because so many students would be more comfortable, I think so. So, if Okay. possible, please. No, sure. So Yeah. I will just do a small recap. So जब garment design करना होता है, so you have lot of अपने mind में we have a lot of ideas कि हमें इस तरह का बनाना है, उस तरह का बनाना है. But जब हम बनाने जाते हैं garments, the problem is that उसमें कि we have to draw the patterns. You have to हमको समझना पड़ता है कि sizings क्या है इसके अंदर, shoulder slope, armhole का जो curve है and all. एंड वो करने के बाद हमें पैटर्न पेपर पे उसे ड्रॉ करना है, उसको फिर फैब्रिक पे ट्रेस करके उसको कट करना है, एंड कट करने के बाद हम बॉडी फॉर्म्स आते हैं जो कि स्पेशल साइजेस होती हैं, जो कि स्पंज टाइप ऑफ मटेरियल की, सॉफ्ट मटेरियल की होती हैं, जिसमें हम पिन अप कर सकते हैं उसको, और अपने जो भी हमने कट आउट किए हैं फैब्रिक्स, और पिन अप करके वी कैन जस्ट चेक कि हाँ ये कैसा दिख रहा है फॉर्म में. एंड देन उसके बाद का अगला स्टेप हो सकता है कि हम उसको स्टिच करके देख लें, कुछ करेक्शन है तो करेक्शन कर लें, स्टिच कर लें, एंड देन वी मेक अ गारमेंट. बट ये जो रूट है ये एक्चुअली बहुत लंबा रूट है, और ये टेक्सटाइल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है हमेशा से. आपको कुछ भी करना है, लेट्स से अगर आपको टेक्सटाइल का फैब्रिक भी डिजाइन करना है, सो ये हमेशा से बड़ी प्रॉब्लम रही है कि ना वी विल हैव टू थिंक अबाउट इट, देन पुट समथिंग ऑन द पेपर, और पेपर पे डालने के बाद यू गो ऑन अ सैम्पल लूम और समथिंग, एंड यू मेक समथिंग, एंड देन यू गेट टू फील. सो यहाँ पे क्या होता है, इट बिकम्स अ लॉट ऑफ हिंड्रेंस टू पीपल हु, जिनके माइंड में आइडियाज होते हैं, जिनको लगता है कि यार नहीं चलो करते हैं, बट दे डोंट हैव राइट सेट ऑफ टूल्स कि हमें अब आगे कैसे बढ़ें करके, बिकॉज हमारे पास या तो बॉडी फॉर्म्स नहीं है, या हमारे पास फैब्रिक नहीं है, या चार्ट पेपर की दिक्कत है, या फिर वो सब्जेक्ट कैसे समझना है. सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. और जब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगा इन माई कंसल्टिंग वर्क, जो कि क्लोथिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे, जहाँ पे मैं क्लोथिंग डिजाइन कर रहा था फॉर एडिंग स्मार्टनेस, तो उसमें सेंसर्स ऐड कर रहा था. तो क्लोथिंग भी जब आप डिजाइन करते हो तो आप बिल्कुल रफ प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर सकते, मतलब भले ही आपने उसमें सेंसिंग या जो भी ऐड करी है, वो जो प्रोडक्ट है दैट शुड आल्सो लुक वेरी निश प्रोडक्ट और वेरी फाइन प्रोडक्ट. सो इस दौरान जब मुझे ये सब करना था, तो मुझे लगा कि मेरे पास एक एलिमेंट है गारमेंट डिजाइन का जो मिसिंग है, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है
मैंने कभी उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा था वही है करके। और जब आप कभी भी वेबसाइट से कहीं पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी बड़ी ब्रांड्स हैं या जो वेरिएबल डोमेन्स में जो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनके वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यू सी अ वेरी ब्यूटीफुल 3D काइंड ऑफ अ मॉक ऑफ द गारमेंट। बहुत अच्छा सुंदर सा रेंडर्ड फोटोग्राफ डालते हैं, इवन बेटर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, जो प्रोडक्ट होता है उससे बेटर। सो इस तरह का था। तो मैंने कहा कि लेट अस ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, हम ये कैसे कर सकते हैं करके। सो इसके दौरान आई गॉट इनटू टच विद दिस सॉफ्टवेयर when I was searching, and I thought that although I am not a proficient person on this software, but I thought this is a good tool which I can share with the students. और स्टूडेंट्स जब इसको देखेंगे, मे बी यूज करेंगे और अगर इसको करिकुलम में भी लाते हैं, सो दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी विच इज कमिंग अप इन लेट्स से लास्ट 2-3 years. सो इसका अगर अडॉप्शन करते हैं तो एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैंने कहा कि लेट मी एटलीस्ट इफ सम ऑफ द यू आर ऑलरेडी अवेयर, आप लोग को आता है, देन इट इज गुड, बट जिनको नहीं आता है उसके लिए लेट इट बी एन इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ सेशन वेयर एटलीस्ट यू आर getting introduced with this kind of a software, and then obviously if आपको लगता है कि इसमें इंटरेस्ट है, you can go ahead and get some trial versions and आप उस पर ट्रायल कर सकते हैं। So any questions till here? So otherwise I will share my screen and we can go ahead. Verma, I think you can start with your presentation. At the end, we will take the questions. Okay, no problem. हेलो, हाँ उन्नति मैडम। Yes, sir. हाँ, आई मे बी लिविंग द दिस मीटिंग, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, yes, sir. Yes, वर्मा sir. सर। Sorry, sir. Sir, yes. हाँ वर्मा सर, मैं शायद मीटिंग में लीव कर रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है कि आप स्टूडेंट को ये सॉफ्टवेयर तो बताइए, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी अगर कोई है आपके फील्ड में, टेक्सटाइल फील्ड में, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताना अगर आपके नॉलेज में है तो। श्योर सर, इसमें मैं भी जनरली ट्राई करता हूं टू यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बट जैसे कि आप जानते हैं उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी में थोड़ा सा इशू रहता है। सेकंड ऑफ ऑल जो डिज़ाइन और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, दे फॉलो सम पैटर्न्स, जो जैसे जो इससे पहले करते थे वो एडोब इलस्ट्रेटर को बहुत यूज करते थे। सो क्योंकि ये ट्रेंड्स चलते हैं, अगर आपके स्टूडेंट्स वो सॉफ्टवेयर नहीं जानेंगे, द प्रॉब्लम इज कि फिर उनको असाइनमेंट इस तरह के मिलेंगे नहीं, बिकॉज दीज आर मल्टीडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर कोई आपने कुछ डिजाइन फाइल भेजी और सामने वाले को कंपैटिबल नहीं है तो ये इशू होता है। सो ऑब्वियसली आई ऑल्सो प्रेफर दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बट इस डोमेन में मुझे ऐसा कुछ खास नहीं मिला। देयर आर फ्यू सॉफ्टवेयर, but this is something which was very easy and I said this is now being adopted quickly, so students को उसका knowledge हो जाना better है। obviously purchasing and all उसमें academic भी होते हैं। करेक्ट, थैंक यू फॉर दैट। और हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड जो है, कंप्यूटर और आईटी वगैरह में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर काफी मिलते हैं, लेकिन आपका तो फील्ड ही ऐसा है कि उसमें ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही ज्यादा होते हैं यूज। या करेक्ट सर। हाँ, आपके नॉलेज में जब भी, आज नहीं तो कभी भी आपके नॉलेज में अगर ऐसे कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वगैरह आए तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करना उसके बारे में। श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट। Thank you, sir. ओके सो आई एम यहाँ पे मैं जस्ट जो सॉफ्टवेयर है विच इज क्लो 3D और CLO जो भी हम बोलते हैं इसे, उसकी जस्ट एक वेबसाइट ग्लांस करवा रहा हूँ क्विकली। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने में सीधे मिल जाएंगी। और अच्छा, इनके रेगुलरली वेबिनार भी कंडक्ट होते हैं, तो आपको अगर इच्छा हो तो यू कैन गो एंड चेक दीज वेबिनार्स। ये यूट्यूब पे भी बहुत अवेलेबल है, यू कैन सी लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स आर देयर। सो हम देखते हैं कि इसमें कैसे काम होता है। तो इनिशियली जब हम जो आज के ज़माने में भी जो होता है जनरली, कि जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपने एडोब इलस्ट्रेटर या ऐसा कोई स्केचिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो एक 2D मॉक्स बनाते हैं, जो कि इस तरह के दिखते हैं। इफ यू कैन सी यहाँ पे आपको 2D मॉक्स दिख रहे हैं करके। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बेस पे पैटर्न बनते हैं एंड आप फैब्रिक सिलेक्शन करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे रेड कलर लगाना है, क्या मुझे रिब लगाना है, वीव चेंज करनी है, मुझे कहाँ स्टिच लाइन्स देनी है, वो होता है। एंड उसके बाद फिर हम उसका गारमेंट बना के उसका एक मॉक गारमेंट बनाते हैं, और मॉक गारमेंट के ऊपर कमेंट्स लेके वी कैन फिनिश इट, उसको फिनिश गारमेंट बनाते हैं कि भाई यहाँ पे करेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे साइज चेंज होनी चाहिए करके। जैसे जब हम क्लो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहाँ पे जैसे ही हम 2D बनाते हैं,
हमको 2D का तुरंत ही एक 3D मिल जाता है। तो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि हमको एक 3D मिल गया है सॉफ्ट इस डिज़ाइन का, जो हमने यहाँ पे करी थी। इस डिज़ाइन का 3D मिलने के बाद अब इसमें जैसे लुक्स में ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमको जो भी स्मॉल चेंजेस करने हैं वो हम तुरंत यहाँ पे, जैसे उन्होंने स्टिच लाइन्स ऐड कर दी, तो स्टिच लाइन्स ऐड करके और इस डिज़ाइन का क्लियरली हम अप्रूवल ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो साइकिल टाइम ऑफ अप्रूवल होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, और दूसरा कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन था पहले कि जैसे हम मैक्सिमम एज ए डिज़ाइनर एक 2D ही बना पा रहे थे, बट वो रियलिस्टिक फीलिंग में कैसा दिख सकता है या क्या हो सकता है वो हमें नहीं मिलता था। तो वो हमें भी एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एनिमेशंस हैं उनके, आई डोंट नो कितने क्लियर दिख रहे हैं आपको। सो ये क्विकली यू कैन डू द चेंजेस। It's clearly visible. Yes, Prashant. ओके गुड। सो क्विकली यू कैन डू द चेंजेस। आप फैब्रिक चेंज कर सकते हैं, मतलब आप कहीं पे शेप्स डालना है, इलास्टिक डालना है, पॉकेटिंग चेंज करना है। सो दीज आर वेरी क्विक एंड देन इजीली रेंडरेबल, तुरंत ही रेंडर हो जाता है एंड देन यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड कि अच्छा ये करने से ये हो रहा है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे हमने 2D में पैटर्न बनाया था, 2D का पैटर्न बनाने के बाद हमने जब 3D रेंडरिंग किया तो वो ऐसा दिख रहा था रेंडर करने के बाद, और जब हमने एक्चुअल गारमेंट बनाया तो कुछ ऐसा दिख रहा था। सो कहने का मतलब है ऑब्वियसली दिस अ मार्केटिंग काइंड ऑफ अ स्लाइड, बट उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारा जो रेंडर होता है दिस इज वेरी क्लोज टू व्हाट एग्जैक्टली जो गारमेंट बनेगा फ्यूचर में। एंड बेसिकली जो एडवांटेज, इफ यू आर सीइंग द एडवांटेज फ्रॉम एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू या एज अ वर्क फ्लो, इफ यू आर अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने जो बताया है कि यू हैव अ लॉट ऑफ सेविंग इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। तो जैसे कि मटेरियल्स, डिज़ाइन सिलेक्शन, सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग होने के बाद लेट से आपका बायर यूरोप में है तो आप यूरोप में उसको सैम्पल भेजते हो, वो रिव्यू होता है, रिव्यू होने के बाद आता है एंड देन वंस इट इज ओवर देन यू गेट द न्यू डिज़ाइन कम्स इन द मार्केट। यहाँ पे हम अप्रूवल जो है वो सीधे 3D सैंपल्स पे ले सकते हैं, और 3D सैंपल्स के बाद जो हमको लगता है कि ये सबसे बेहतरीन दिख रहा है या ये सबसे नज़दीक है, देन उसका हम एक ही सैंपल बना के उसमें माइनर ट्विक्स करके वी कैन ऑब्वियसली कट डाउन द होल साइकिल टाइम। सो इससे एक हमारा कॉस्ट सेविंग भी होता है, टाइम सेविंग भी होता है इसके अंदर। सो दिस वाज इट। और नाउ अब मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू टू इन द सॉफ्टवेयर and let us see how we can use the software. Let me just share my screen again. Okay, so you can see the software now. Yes, So, sir. okay, Yes. thank you. Yes, sir. So Yes, this is yes, the it is visible. thank you. So this is the software interface जो हमारा है, and इसके अंदर मैंने बहुत सी पैनल्स है जो हाइड कर दिया है बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी दिस थिंग। तो इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक 2D व्यू होता है जिसमें हम ऑलरेडी हैं, जहाँ पे हम 2D का काम करेंगे, और एक 3D व्यू होता है जहाँ पे हमको उसके रिजल्ट्स जो 2D में काम करते हैं वो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, इस तरह के हैं। इसमें सबसे पहले हमको जब कोई भी पैटर्न बनाना है, मतलब कोई भी गारमेंट लेट से बनाना है, एंड आई विल जस्ट शो अ वेरी सिंपल गारमेंट, सो जस्ट टू शो यू हाउ थिंग्स आर सिंपल, एंड ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। आपको बहुत हाई लेवल ऑफ 3D मतलब प्लीट्स बनानी है, बहुत कुछ बनाना है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ। सो आई विल ऑल्सो शोकेस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो इससे बने हुए हैं, सो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या बन सकता है, बट राइट नाउ इट विल बी मोर ऑफ अ बेसिक थिंग। सो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, आई जस्ट ओपन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाके हम एक अवतार ढूंढते हैं विच विल बी द बॉडी फॉर्म जिस पे हम काम करना चाहते हैं करके। सो मैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉडी फॉर्म आ गया है, एंड इसमें साइजेस भी होती हैं, बट अभी जैसे मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, सो आप यू कैन डबल क्लिक ऑन दिस। ओके, सो डबल क्लिक करने पे वो हमको अपना अवतार आ गया है। सो आई विल जस्ट क्विकली जूम आउट करके, सो दिस इज व्हाट यू कैन सी नाउ। तो अब हम इसके ऊपर स्केचिंग कर सकते हैं टू मेक आवर गारमेंट। साथ ही साथ मैं इसका 3D व्यू भी दिखा देता हूं, क्योंकि हमने अवतार इंपोर्ट कर लिया है, तो एक 3D व्यू में भी अवतार आ जाता है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें भी आप पैन जूम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली अगर आपने कभी 3D सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो आपको पता चल जाएगा। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दोज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। मैं अगेन 2D व्यू में जा रहा हूँ, दिस इज द 2D व्यू। अब क्योंकि हमारे पास एक बॉडी शेप या एक फॉर्म फैक्टर है, अगर हमको डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है
कि कैसे, जैसे अगर आप प्रॉपर वे में जाएं गारमेंट डिजाइन में, देन एज आई मेंशन देयर इज लॉट ऑफ साइजेस, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट मेंशनिंग ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। जैसे मैंने कहा शोल्डर स्लोप्स है, आर्म होल साइज है, एंड देन योर लेंथ, जो फ्रंट टॉप शोल्डर से लेके नीचे की जो लेंथ आती है, विच इज एक्जेक्टली द लेंथ ऑफ योर दिस शर्ट इफ यू आर मेकिंग अ शर्ट। सो वो सब भी नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। बेसिकली यहाँ पे मैं एक पॉलीगन यूज कर रहा हूँ। पॉलीगन बेसिकली सेट ऑफ लाइन से हम एक शेप अगर बनाते हैं तो यू कैन मेक इट अ पॉलीगन। और मैं लेट्स से कि जो नेक होता है हमारा, नेक पोर्शन, वहाँ से मुझे एक टी शर्ट डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे मैंने पॉइंट क्लिक करके बनाया, एंड देन थोड़ा मैं कर्व ऐड कर रहा हूँ। कर्व ऐड करने के टूल्स होते हैं इसमें, सो बेसिकली जस्ट कंट्रोल प्रेस करके मैं क्लिक करूंगा तो कर्व ऐड हो जाएगा। बट क्योंकि दिस इज नॉट अ क्लोज ट्यूटोरियल कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि इससे क्या होगा उससे, आई एम जस्ट शोइंग द पॉसिबिलिटीज, तो इसलिए आई विल मे बी स्किप सम ऑफ द बेसिक क्लिक्स और द कंट्रोल बटन्स इफ आई एम यूजिंग। तो यहाँ पे मैं कर्व बना रहा हूँ विच इज़ वेरी सिंपल। जैसे मैंने नेक के लिए कर्व बना लिया, और शोल्डर्स पे मैं उसको यहाँ पे ला रहा हूँ, एंड देन आई एम जस्ट क्लिकिंग। जहाँ पे मुझे लगता है मैं वहाँ पे लास्ट क्लिक कर देता हूँ। शोल्डर्स के ऊपर मैं लाने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर मैं टी शर्ट का लेट से एक स्लीव बनानी है मुझे, स्लीव पोर्शन, तो मैं कंट्रोल क्लिक करके उस पर कर्व्स बनाऊँगा। उसके बाद मे बी मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, जो भी मुझे हाइट ठीक लगे। दिस इज अराउंड द वेस्ट एरिया। सो लेट्स सी, एंड अगेन लेट मी कीप इट अ लिटिल बिट शॉर्टर राइट नाउ। तो मैं छोटा सा बना रहा हूँ अभी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको थोड़ा अंदर फिट लेना है तो यू कैन यूज अ फिट, तो मैंने थोड़ा डायगोनल कर लिया इसको, एंड जस्ट गो हियर एंड गो हियर। तो क्लोज करना है इसको बस। इसमें साइजेस जो हैं वो इंच में आप देख रहे हैं, आपके पास आ ही रहे हैं। अगर आपके पास साइजेस पड़े हैं, यू कैन यूज द साइजेस डायरेक्टली। हम साइज मेजर कर करके ही इसको आगे बना सकते हैं। बट मैं आपको जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है अगर गारमेंट्स के बारे में, उसको भी बनाना है, तो हाउ यू कैन डू दैट। तो ये हमारा एक पैटर्न पीस बन गया है, जो हमारा फ्रंट पोर्शन का जो हाफ पीस है वो हमने बनाया है। अब हमको अगर बैक बनाना है इसी के अंदर, सो दैट वी कैन मेक दिस सेम, जो शोल्डर स्लोप है उसकी लेंथ सेम रहे और हाइट हमको अगर सेम रखनी है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको सेगमेंट को यहाँ से क्लोन कर सकते हैं या इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया और राइट क्लिक करके इसको मिरर पेस्ट किया। मिरर पेस्ट इसलिए किया क्योंकि ये बैक साइड जो है वो फेस में आ रही है इसके लिए, तो मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी फ्रंट साइड है जो मैं अभी ब्लू से हाईलाइटेड है, और ये हमारी बैक साइड बनेगी। अभी बैक साइड में हम कुछ माइनर चेंजेस क्यों करेंगे, रीज़न इज कि बैक साइड में अगर आप देखें, एंड लेट मी जूम इट, तो जो हमारा नेक होता है, नेक के बैक का जो ओपनिंग होता है वो बहुत ही क्लोज होता है, इतना डीप नहीं होता है। जो यहाँ पे बहुत डीप दिख रहा है उतना डीप नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास एडिट टूल्स है, आप पैटर्न को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट टूल सिलेक्ट करके आपको एक पॉइंट चूज करिए, उस पॉइंट को चूज करके आप इसको ऊपर ले सकते हैं। क्लोजर ने उसको ऊपर कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारा ये जो कर्व पोर्शन है ये बिगड़ गया करके, तो हम इसके लिए हमारे पास कर्व्स के टूल्स आते हैं। आप कर्वेचर पकड़ के यू कैन जस्ट एडिट इट। तो ये अभी हमारी जो बैक की जो नेक है वो अब थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, ताकि वो हमारे बिल्कुल पीछे यहाँ पे आ जाए, ना कि वो पीछे ऐसे गैप एक यू शेप सर्कल बनाएगी। अगेन यहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो ब्लैक का जो आर्मोल कट भी होता है वो थोड़ा स्ट्रेट होता है, बिकॉज फ्रंट में हमारे पास शोल्डर में ये बल्ज होता है। इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा डीप कट बनाते हैं, बैक में उतना डीप कट नहीं होता है। तो इस भी कर्व को मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता हूँ। लेट्स से इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया, ना कि बहुत डीप कट कर दिया। तो इस तरह का बन गया। ये जैसे ही हम यहाँ पे 2D में करते हैं, एट द सेम टाइम यहाँ पे 3D में भी हमको इसके पैटर्न्स आके दिख जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बॉडी पे कैसे फॉल होगा करके। ठीक है, मैं 2D में अगेन वापस जा रहा हूँ करके। सो बेसिक ये हमारा पैटर्न बन गया है। अब हम इसमें एक चीज़ जो ऐड कर सकते हैं वो होगी हमारी स्लीव। सो लेट मी ऐड अ स्लीव ऑल्सो। स्लीव के लिए हम एक रेक्टेंगल ले सकते हैं पहले शुरू करने के लिए। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल्स भी हैं, यहाँ पे एलिप्स टूल्स भी हैं। आपको जिस तरह के टूल्स चाहिए एवरीथिंग इज अवेलेबल, और मैं सारे टूल्स को इन डेप्थ नहीं कवर करूँगा, बिकॉज इट्स जस्ट टू शो यू सम ऑफ द पॉसिबिलिटी। सो लेट्स से ये हमारा आर्म होल का, हमने स्लीव का पोर्शन है।
सॉरी, इसको हम सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। अब हमको अगर इस पे कर्व्स ऐड करने हैं तो हम कर्व ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। बेसिकली ये जो मैं बना रहा हूँ ये कर्व, ये बेसिकली यहाँ पे स्टिच होगा, इस पोर्शन पे, यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच होगा। सो ये मैंने यहाँ पे बना लिया है करके। अगेन इसका शेप बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यस, इसका शेप, दिस इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड थिंग विच यू विल लर्न व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द गारमेंट डिजाइन. This is more of a layman kind of way of doing it. So this is one way to do it, and then you can add more points. थोड़ा सा हमको यहाँ पे उसको डाउन बल्ज देना है तो हम दे सकते हैं. Again, these are some of the tools which we are using. One of the requirements, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ so that I am able to flatten this a little bit. सिमिलरली मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क मोर ऑन दिस. एंड इसके जैसे अब हमको अंदाजे से समझना है कि ये शेप सही साइज़ का बना है कि नहीं, बिकॉज ये जैसे मैंने कहा यहाँ पे स्टिच होगा और बैक में भी स्टिच होगा. सो व्हेन यू क्लिक हियर, हम जब एडिट पैटर्न करके यहाँ क्लिक करते हैं, सो यू गेट अ साइज 8.75 इंचेस की ये पूरी लेंथ आ रही है करके, और सेम वे में हमारी 7.67 आ रही है. तो दिस शुड बी समवेयर अराउंड 16 करके टोटल ये होना चाहिए. 8 + 7, 8.7 + 7.6 का जो भी टोटल आता है, रफली लेट्स अज्यूम अराउंड 16. तो यहाँ पे वो लेंथ हमारी 16 की होनी चाहिए टोटल, विच इज़ अराउंड 12, 14, 6, तो अराउंड 15, 16 जैसी हमारी लेंथ ऑलमोस्ट आ रही है करके यहाँ पे. ये करने के बाद अब हमको लेट्स सी, तो हमारे पास सिंगल पैनल बन गए. हमको क्योंकि ये पैनल सिमेट्रिकल होते हैं, सो वी जनरली मेक अ सिंगल पैनल, एंड हम उसको आधे में इसलिए बनाते हैं सो दैट हमको कुछ भी यहाँ पे रेफरेंस लाइन या कुछ भी हमको यहाँ ऐड करनी हो तो वो क्रॉस ओवर होकर दूसरे पैटर्न में ना जाए, इसलिए हम आधे में बनाते हैं. तो इसको अगर हमको डुप्लीकेट करना है तो वी कैन ऑब्वियसली क्रिएट अ सिमेट्रिकल पैटर्न, और उसको हम बना सकते हैं यहाँ पे. तो क्विकली हमारा एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया. तो फ्रंट फेस रेडी हो गया, फ्रंट पोर्शन रेडी हो गया. सिमिलरली यहाँ पे हम सिमेट्रिकल पैटर्न बनाएंगे. ये पोर्शन भी रेडी हो गया हमारा. अब यहाँ का जो मार्किंग है, जो यहाँ पे स्टिच लाइन आएगी, आधी आधी, जैसे मैंने कहा ये पूरा आधा यहाँ स्टिच होगा और आधा यहाँ स्टिच होगा. उसके लिए यहाँ पे हमको नॉच ऐड करना है ताकि हम उसकी जब स्टिचिंग लाइंस बना सके तो हम उस पर डिमार्केट कर सके कि एग्जैक्टली किधर तक हमारी स्टिच आके रुकेगी. यहाँ हमने एक नॉच ऐड कर दिया, नॉच मार्क हो गया. ठीक है, सो लेट अस क्विकली गो 3D व्यू में जाके देखते हैं. सो हमारे पास सारे पैटर्न सब रेडी हो गए हैं जस्ट टू मेक अ वेरी बेसिक टी शर्ट. और वो बनाने के बाद हम देखते हैं कि हमें कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी कि नहीं. अब ये होने के बाद हमको डिफरेंट पोर्शंस को स्टिच करना है टुगेदर. सो वो स्टिच करने के लिए हमारे पास ये स्टिचिंग टूल है. यहाँ पे स्टिचिंग टूल से हम बेसिकली क्या करेंगे, और ओके, सो लेट मी डू इट. स्टिचिंग टूल से हम यहाँ से शुरू करते हैं. सो जस्ट लेट मी गिव अ ब्रीफ. तो ये जो पोर्शन होता है इनिशियली यहाँ वाला, दिस विल स्टार्ट विथ दिस एंड एंड विथ एंड हियर. सो हम इसको लेते हैं,
ओके, सो स्टिचिंग पैटर्न हमको लेके टू स्टार्ट हियर, एंड जो आपको नॉच यहाँ पे दिख रही है दैट विल गिव यू कि कौन सा पोर्शन से स्टार्ट होगा स्टिचिंग, एंड सेम वे वी आर गोइंग टू स्टिच इट हियर। अगेन ये पोर्शन हम लेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टिच इट लाइक हियर। बॉटम पोर्शन है साइड, जो साइड में है स्लीव फोल्ड होती है तो उसको हम यहाँ स्टिच करेंगे। ओके, सो ये स्लीव एक साइड की है, हमको दो साइड की स्लीव बनानी है, तो वी विल जस्ट कॉपी इट, कॉपी एंड वी विल जस्ट पेस्ट इट। ये दूसरी स्लीव बन गई, हम इसमें भी स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग के मार्क्स लगाएंगे। एंड इसमें हम कुछ अगर गलत भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वी कैन जस्ट चेक इन 3D। तो जब हम 3D में जाएंगे तो हम चेक कर पाएंगे। तो मैं क्विकली एक बार जस्ट 3D में जाके देख रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सी पोर्शन या कौन सा पार्ट किसके साथ स्टिच होने वाला है, ये यहाँ पे मार्किंग्स आपको दिख रही है क्लियरली। ओके, इसके बाद हम यहाँ स्टिचिंग करेंगे। ये दोनों पैनल्स अलग हैं, इनको स्टिच करेंगे। अभी मैंने इन दोनों पैनल को स्टिचेबल पैनल बनाया है, हम इसको बाद में मर्ज भी कर सकते हैं। बट जस्ट जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लेफ्ट में एक पॉकेट लगाना है तो आप पॉकेट लगा दें, उसमें सिमेट्री नाम नहीं मेंटेन करने के लिए, सो वी हैव केप्ट इट सेपरेट राइट नाउ। तो आई थिंक हमने कुछ किए हैं और अभी भी कुछ स्टिच पॉइंट्स बाकी हैं, बट लेट अस रेंडर एंड सी कि हमारी गलती क्या है, वो हमको वहाँ पे दिख जाएगी। सो अभी हमने इसको यहाँ पे 3D में हम देख पा रहे हैं इसको। मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले लूँगा, सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं करके। तो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं साइड व्यू में जा रहा हूँ। साइड व्यू में जाके यहाँ पे मैं अटैचमेंट पॉइंट्स को एक्टिवेट करता हूँ। सो ये बॉडी पे अटैचमेंट पॉइंट्स बने हुए हैं इसके अंदर। तो आपको कौन सा पैनल कहाँ अटैच करना है, इसके लिए हमको पैनल सिलेक्ट करना होगा और फिर आगे उसको अटैच करना होगा। तो लेट्स डू इट वन बाय वन। हम ये फ्रंट पैनल चूज़ करते हैं। फ्रंट पैनल रफली अगर आप देखें तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ इसको, ये बहुत ऊपर हो जाएगा, बट यू कैन स्टिल ट्राई, बट लेट्स सी क्या होता है। इसमें कोई इशू नहीं है, वी कैन ऑलवेज रीडू इट। तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट पैनल बॉडी पे अटैच हो गया है दोनों। अब ये हमारा बैक पैनल है। अब बैक पैनल आप देख रहे हैं मैं गलत जगह अटैच कर रहा हूँ, तो इट इज शोइंग अ रिवर्स पैटर्न। जो स्लीव्स के कट आने चाहिए, जो आर्म होल्स के कट, वो एक्चुअली अंदर आ रहे हैं। तो आई एम डूइंग इट रॉन्ग, तो मैंने गलत पैनल सेलेक्ट किया था। सो आई कैन जस्ट डू इट हियर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, बैक पैनल भी कनेक्ट हो गए। अब हमें स्लीव्स कनेक्ट करने हैं, ठीक है। ये स्लीव हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमने स्लीव कनेक्ट करी एक, ये दूसरी स्लीव कनेक्ट करी। तो यहाँ पे आप स्टिचिंग भी देख सकते हैं कि अगर आपकी स्टिच लाइंस बराबर हैं, आपने जहाँ स्टिच करना था वहाँ पे स्टिच हो रही है कि नहीं हो रही है। सो यू कैन सी कि स्टिच लाइंस आपकी प्रॉपर आ रही है यहाँ पे। अब मैं इसको एक सिमुलेशन करूँगा। इससे पहले मैं ये पॉइंट्स बंद कर देता हूँ सो दैट विजिबिलिटी बेटर हो जाए। सो मैं सिमुलेशन करूँगा और एक्चुअली ये गारमेंट प्रॉपरली अभी स्टिच हुआ नहीं है करके, सो दैट विल हैपन लेटर। जो करेक्शन है वो हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सिमुलेट बटन है, उसको दबाता हूँ। बिफोर दैट लेट मी जूम इट। ठीक है, तो आपने देखा कि ये टी शर्ट बन गया 3D में एंड बॉडी फॉर्म पे आ गया, बट ऐसे आप देख रहे हैं इसमें गलतियां कहाँ कहाँ हैं। आपका गलती हो रही है आपकी, ये शोल्डर स्टिचिंग हमने करी नहीं है, तो यहाँ पे शोल्डर स्टिचिंग बाकी है। हमने साइड सीम्स भी स्टिच नहीं करी थी, तो ये पूरा खुला खुला बना है करके। और ये थोड़ा सा छोटा भी लग रहा है करके। तो छोटे पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम स्टिचिंग वाले इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे स्टिचिंग टूल 2D में आ गए हैं, ले लेंगे करके। हमने देखा कि शोल्डर की जो सीम्स है वो प्रॉपर लगी नहीं है, ठीक है। तो हमने शोल्डर्स को स्टिच कर दिया। लेट मी स्टिच इट, लेट्स सी कि वहाँ पे क्या दिखता है, ठीक है। ठीक है, हमने ये एक शोल्डर की स्टिच लगाई यहाँ पे एंड वी आर अगेन गोइंग इनटू 3D। तो आपको दिख रहा है कि हाँ प्रॉपर शोल्डर से कनेक्टेड हो रहा है, फ्रंट और बैक का कोई इशू नहीं आ रहा है हमको। अभी हमारे साइड सीम्स बाकी है, हम वापस 2D में जाएंगे, साइड सीम को कनेक्ट करेंगे साइड सीम से, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी स्टिच पॉइंट्स जनरेट हो गए हैं। अब मैं फिर से जब सिमुलेट करूंगा तो इसको प्रॉपरली क्लोज हो जाना चाहिए। लेट मी सिमुलेट अगेन। ठीक है, तो आपकी ये जो आप डिज़ाइन करना चाह रहे थे फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कोई साइजेस नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, आपने कुछ एटलीस्ट एक गारमेंट टू अ लेवल डिज़ाइन कर लिया। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर फैशन, बट दिस इज जस्ट एन आइडिया कि इन केस even if you are a non-textile person, you can do such kind of creation, and then obviously if you are textile then you can go in depth. There are a lot of tools in this, उसको यूज़ करके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अभी इसमें कुछ इश्यूज हैं जो हमको प्राइमा फेसी दिख रहे हैं। एक तो ये हमने सेंटर में स्टिच लाइन रखी थी, वो हम एक्चुअली होती नहीं है, वो सिंगल पीस में हो जाता है टी शर्ट्स में। यहाँ पे थोड़ा बल्जिंग आ रहा है क्योंकि हमारा शेप प्रॉपर नहीं था, तो वी विल ट्राई एंड सी करेक्ट। और ये थोड़ा सा टी शर्ट जो है बहुत छोटा हो गया है, और अगेन ये बिल्कुल बॉडी हगिंग हो गया है क्योंकि बहुत टाइट हो गया है करके। सो ये सब चीज़ों को हम अब यहाँ पे सीधे सीधे करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड देन वी विल सी कि इसमें हम अभी और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे नेक है, नेक तो आई थिंक मोटा मोटा ठीक है, इतना नेक पीछे और आगे ओके लग रहा है। सो लेट्स फर्स्ट इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस टी शर्ट। अब उसके लिए बिकॉज ये हमने क्लोन किए हुए पैटर्न है, हमको एक में ही काम करना है, दूसरे में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो लेट मी सिलेक्ट एडिट पैटर्न, आई कैन जस्ट एडिट पैटर्न। ये सेगमेंट को हमको नीचे लेना है विदाउट अफेक्टिंग एनीथिंग ऑन द होल पैटर्न। तो हम इसको ड्रैग करेंगे, एंड देन देयर आर शॉर्टकट कीज। ड्रैग करते करते राइट क्लिक कर लेंगे तो आप एग्जैक्ट अमाउंट डाल सकते हैं। मैं इसको लेट से 3 इंच बड़ा करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आपने देखा फ्रंट जो है वो 3 इंच बड़ा हो गया है। लेट्स सी यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि फ्रंट है ना हमारा ठीक है, मोटा मोटा मतलब जहाँ पे हमको चाहिए वो ठीक आ रहा है, इस हाइट का ही होना चाहिए। सेम वे हम, अच्छा अब ये क्या है कि कोई हमने टेपर दिया था, टेपर बहुत ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा हिप पे ब्रॉड आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, वरना ये गारमेंट बहुत ही टाइट हो जाए, इसमें टाइट सिमुलेट होगा। बट अगेन इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। तो लेट्स से इसको हम 0.7 बढ़ाते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट रखना चाहता हूँ सो दैट पीछे भी मैं उतना ही लूँ। लेट्स से 0.7 इंच मैंने इसको बढ़ा दिया। यहाँ भी जो बैक का पैटर्न है हमने क्योंकि 3 इंच उसको नीचे किया है, तो यहाँ भी हम उसको 3 इंच नीचे करेंगे ताकि वो हाइट प्रॉपर फ्रंट बैक की मेंटेन हो जाए। 3 इंच करके मैंने उसको एंटर कर दिया, और यहाँ पे इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, बट लेट्स इसको, ताकि वरना सीम पीछे चली जाएगी, तो लेट्स ऑल्सो इंक्रीज दिस ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री मैं कर रहा हूँ। बट अगेन इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, आप रखना चाहते हो कि सीम आगे से पीछे जाए या कुछ ऐसा रखना चाहते हो, यू कैन स्टिल डू दैट। सो हम 3D में जाके चेक कर सकते हैं, तो हमारी ये हमने देखा कि वापस ये हाइट बढ़ गई है इसकी। अब हमें जो भी हमने चेंजेस किए उसके लिए हम एक बार जस्ट क्विकली सिमुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है। तो हमने देखा कि अब इसकी हाइट का इशू सॉल्व हो गया है, और जो बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ रही थी वो भी ठीक है यहाँ पे। अब थोड़ा सा हमको अगर कुछ करना है तो हम इसको हैंड से भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये टी शर्ट बहुत ही टाइट है अभी भी, सो इसलिए वो थोड़ा सा शेप उसका नहीं आ रहा है करके। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली मेक दिस काइंड ऑफ अ 3D गारमेंट। इसमें एक और चीज़ ये करनी थी हमको कि जो हमारे स्टिच लाइंस आ रही हैं फ्रंट में, ये क्योंकि हमने इसको सेपरेट रखा था शुरू में, वी कैन जस्ट कीप इट टुगेदर ऑल्सो। उसके लिए मैं एडिट पैटर्न टूल में जाऊँगा, ये पोर्शन सिलेक्ट करूँगा जो हमको मर्ज करनी है, और दूसरा शिफ्ट दबा के दूसरा पोर्शन सिलेक्ट करूँगा, एंड देन देयर शुड बी एन ऑप्शन ऑफ मर्जिंग। मर्ज होने में वो सीधे सीधे एक पैटर्न आ गया। यहाँ पे कुछ इशू हुआ है, हाँ इधर कुछ इशू हुआ है, बिकॉज एक और दूसरा पैटर्न आ गया है जो कि आना नहीं चाहिए था। आई विल जस्ट सी कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो अगेन लेट मी डू इट। ओके, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आई होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अभी जो स्टिच लाइन यहाँ आ रही थी वो गायब हो गई है, तो हम इसको फिनिश कर सकते हैं। सेम वे में मैं बैक में कर दूंगा क्विकली, एंड दिस इज एज आई सेड वेरी बेसिक काइंड ऑफ अ ट्यूटोरियल। ठीक है, तो बैक में भी हमारा इश्यू सॉल्व हो गया है। अब हम यहाँ पे भी जो शेप है उसको लाने के लिए थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा उठ के बाहर आ रहा है, एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड। सो यहाँ पे भी हम इसको
शेप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली शेप इम्प्रूव करना भी पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग अ स्लीव. देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, जैसे मैंने शुरू में डाले थे, तो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स हियर, एंड अगेन साइज हैव टू बी मेंटेन्ड, इसलिए so that I have not done properly, उसकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा है. And again this as I said, this size have to match, but अभी I am not going to do too much. Just quickly let us see if we can do something, and उससे अगर कुछ होता है तो okay, so and what are the effects which we can get. So you can also do trial and error, which is actually not very good, but still you can just work on that. So अभी आप देख रहे हो कि मैंने उसको खींच दिया था तो अभी एकदम फ्लैट बैठ गया है, you can see. बट दिस इज अगेन इट मे बी वेरी टाइट, और उसके वजह से इशू हो सकता है करके यहाँ पे. एंड लेट मी गो बैक. यहाँ पे अगर हमको लगता है कि हाइट बढ़ानी है फॉर स्लीव, यू कैन ऑल्सो डू दैट. ठीक है, तो हम स्लीव भी हमने बढ़ा दिया. अब ऑब्वियसली यू कैन सी कि हमने एक ही साइड की स्लीव बढ़ाई थी. आई थिंक इट शुड वर्क, क्योंकि हमने क्लोन किया था. अच्छा, नहीं किया है क्लोन. सो इस एक साइड की स्लीव बढ़ गई है और दूसरी कम हो गई है, एंड अगेन द स्लाइस इज स्मॉल यहाँ पे, इसलिए दिख रही है. सो यू कैन दिस शुड बी एक्चुअली बिगर, ये बड़ा होना चाहिए, बट इट्स नॉट. सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑन दैट. सो ये एक हमारा एक माइलस्टोन हो गया है एक तरह का. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको क्लाइंट को कुछ स्पेशल फैब्रिक्स में दिखाना है, तो यहाँ पे फैब्रिक्स के ऑप्शन भी हैं. सो वी विल गो इनटू फैब्रिक्स, और फैब्रिक्स में आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है. लेट्स से मैं स्ट्रेच डेनिम में जाता हूँ बिकॉज इट्स ईजियर, एंड देन अगेन उसमें क्या है कि बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेच, थोड़ा सा वो बॉडी फिटिंग हो जाता है. सो लेट मी ओपन माय ऑब्जेक्ट पैनल ऑल्सो. यहाँ पे हम फैब्रिक दिख रहा है, इस फैब्रिक को हम रिप्लेस करेंगे डेनिम स्ट्रेच से. तो लेट मी जस्ट पुट इट हियर, ड्रैग इट हियर. सो ये करने से जो भी हमारा डिफॉल्ट फैब्रिक था वो डेनिम हो गया है. एंड लेट अस हैव अ लुक इन 3D. इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी इट. So proper fabric also you can just put it there, and if you want you can zoom in and check. You will have that look of denim which is there, that fill lines with undyed web, sorry, I'm sorry. So this is there, these are the different things which you can do. मैं again एक बार fabric में जाके let's try to put let's say let me put a different fabric here. और मैं लेट्स से स्लीव्स को दूसरे फैब्रिक से बनाना चाहता हूँ, या लेट्स से मैं बॉडी को दूसरे फैब्रिक से बनाना चाहता हूँ, बैक बॉडी एंड देन द फ्रंट बॉडी. सो दिस इज आई एम सॉरी, थोड़ा मेरा पीसी हैंग हो रहा था. ओके, सो दिस इज लेट मी हाइड दिस. यू आर एबल टू सी अ बेटर व्यू हियर. नाउ यू कैन सी जो हमने करेक्शन यहाँ किया था वो यहाँ नहीं किया हुआ है इस स्लीव पे, इसलिए यू कैन स्टिल सी दैट ओल्ड इशू व्हिच वाज देयर, बल्जिंग, जो कि यहाँ पे हमने करेक्ट कर लिया है करके. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ लुक यू कैन गेट. नाउ द ऑप्शन इन दिस, अगेन वन मोर ऑप्शन इन दिस इज रेंडरिंग. सो लेट्स से कि मुझे इसको एक ब्यूटीफुल अपनी वेबसाइट बनानी है, एंड उसके लिए मुझे इसको या कस्टमर को दिखाना है. एंड अगेन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अभी भी करी जा सकती हैं, जैसे कि इफ़ यू वांट टू पुट अ टॉप स्टिच कहीं कहीं जगह पे. लेट मी ट्राई इफ आई कैन डू दैट. मैं करके देखता हूँ इफ दैट इज पॉसिबल. ओके, वी हैव सेगमेंटेड, वी हैव अ फ्री टॉप स्टिच, एंड लेट मी ओपन द ब्राउजर. स्टिच में थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर बिकॉज रेंडरिंग करता है, तो इट टेक्स सम टाइम टू लोड एंड ऑन. सो यहाँ पे मैं एक फ्री टॉप स्टिच लगा रहा हूँ करके. ओके, सो ये इम्प्लीमेंट हो गई है, और मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके इस टॉप स्टिच का कलर चेंज कर सकता हूँ. आई थिंक इट शुड वर्क. लेट्स सी. ओके,
सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टॉप स्टिच दिख रही है, बहुत ही माइन्यूट है. मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज इफ यू वांट टू हाईलाइट इट. सो लेट्स सी दैट. सो प्रॉपर्टीज में भी आप लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर. स्टिच पर इंच में कम कर देता हूँ तो थोड़ी सी स्टिच बड़ी दिखे. सो नाउ आप देख सकते हैं कि आपको ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, और मैं स्टिच पर इंच कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, कम हो गई है. मैं इसको लेट से 8 कर देता हूँ. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. आप अगर नाउ आप गारमेंट पे उसका रेंडर भी देख सकते हैं जब वो रेंडर होगा तो. एंड देन हियर आप आई थिंक देयर इज अ ऑप्शन टू यूज अ डबल लाइन आल्सो. इफ इट इज देयर आई विल जस्ट शो, अदरवाइज आई विल स्किप. ओके, सो नंबर ऑफ लाइंस आप चेंज कर सकते हैं. लेट्स से 3 लाइंस. तो आपको अगर अगेन ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है. सो लेट्स से 2 लाइंस, एंड अगर आई थिंक वहाँ पे एक स्पेसिंग भी होगी, सो दिस यू कैन रिड्यूस बाय 0.1 से. ठीक है, तो इट कैन एक्ट एज अ डिज़ाइन एलिमेंट. सो दिस काइंड ऑफ, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दिस. यहाँ पे यू कैन डू पकरिंग भी कर सकते हैं, सब तरह के विजुअल्स ला सकते हैं. एंड अगेन आई विल रिस्ट्रिक्ट दिस द पैरामीटर्स देयर. और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि इसका एक जैसे मैंने कहा था रेंडरिंग का ऑप्शन. सो यहाँ पे इफ यू सी ऑन द टॉप देयर इज अ टैब ऑफ रेंडरिंग. हम इसमें रेंडर करेंगे. रेंडरिंग में अभी मैं एक स्मॉल रेंडरिंग ही करूँगा बिकॉज रेंडरिंग टेक सम टाइम. तो मैंने एक इसलिए छोटे पिक्सल की ही रखी है, 480 by 640 पिक्सल, विच विल गिव अ स्मॉलर इमेज. A smaller image will give you a lesser time to render, take lesser time to render. So whatever lighting parameters are there, so यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हैं कि ये बहुत फिनिश अच्छी नहीं लग रही नेक पे. So here you can do the hemming and all. So these are options are available. तो अभी ये रेंडरिंग हो रही है इस पे. It's going on 50, 47, 50%. This will tell you कि कितना परसेंट रेंडरिंग हो गया है. एंड एट द एंड वो आपको पूछेगा कि कहाँ, मतलब इफ़ यू वांट टू सेव और समथिंग. तो मैंने सेव नहीं किया है. सो दिस इज 85% जूम. आपको और जूम करना है तो यू कैन गो 130. तो आप देख रहे हैं कि ये आपका रेंडर आउटपुट आ गया है यहाँ पे. 130 इज नॉट अ गुड ऑप्शन. जनरली यू शुड गो फॉर 100% ओनली. सो दिस इज योर रेंडर्ड फोटो. नाउ ये मूव नहीं करेगा, बट इट्स रेंडर्ड फोटो. तो आपको कोई भी एक पोस्ट पे रेंडरिंग लेनी है गारमेंट की, सो यू कैन डू दैट. तो मैं थोड़ा सा एक बार टी शर्ट का ले लेता हूँ रेंडर, जस्ट टू हैव अ क्विक लुक. सो इस तरह का आपका जैसे ये दिख रहा है, ये एक रेंडरिंग प्रोड्यूस हो जाएगा. एंड दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स एंड ऑल यू कैन यूज ऑन योर वेबसाइट or your if you have your portfolio and all. Okay, so I'm not saving this. I'm just keeping it here. इसके बाद एक और भी ऑप्शन है, एंड एक्चुअली दैट वाज द प्राइम रीजन आई वांटेड टू वर्क ऑन दिस. एंड वो ऑप्शन ये था कि हाउ डू आई पुट सच काइंड ऑफ. सो इफ यू कैन सी, आप जूम कर रहे हैं, दिस इज 3D मॉडल. इफ यू सी, यू विल सी अ नेट, सॉरी ज़्यादा जूम हो गया. सो कैन यू सी दैट knitted kind of a structure here clearly? So I don't know how clear it is for you guys on the Yes, internet. it is visible. Yes. So basic. Okay. Zoom is okay. So basically I wanted to, if I want to present this on, if I have a product and I want to present this on my website, एंड क्योंकि मैंने 3D मॉडल बनाया है और मैं इसका अगर पिक्चर्स भी लगाऊंगा तो 2-4 ही लगा सकता हूँ, फ्रंट में, बैक में, ऐसे करके. सो इज देयर अ वे इफ आई कैन डू इंटरैक्टिविटी ऑफ दिस ऑन इंटरनेट? सो उसके लिए भी एक तरीका है. सो व्हाट यू कैन डू इज, फाइल में जाके you have to export, and then you export it as GITF 2.0. and इसके कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए होंगे, I can share with you later, and let us try to do that. or I will just save it on my desktop. You will not be able to see it because this is not only my screen is presented. The software is presenting, that's why. And this is let's name it test file, and I have saved it on my desktop. It showed a saved logo. अभी इसमें he is asking कि do you want to put avatar I can put avatar this body form, but again उसकी फाइल साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, and I don't want to showcase avatar, so उसका कोई मतलब नहीं है. I can remove that. अगर कोई ट्रिम्स होती, जैसे बटन्स लगाए होते, तो I could have put that, but मैंने कुछ लगाया नहीं. I am just removing that. इसमें क्या होता है, बिकॉज इट्स अ 3D फाइल, उसकी फाइल साइज बड़ी हो जाती है. तो टू रिड्यूस दैट यू हैव टू ऑप्टिमाइज कि हम क्या क्या कर सकते हैं. एंड देन आई विल सेट ओके, and this will convert into a 3D file.
Now I will just quickly let me check the screen. Yeah, quickly unshare, and then I will share my browser now. Let me see. Okay, this is the browser. So you can see the browser now, and इसमें मैं, so there is already a render which I have done and I have kept on my website. So I will just quickly go there. So as I said, कि because the file size is bigger, it takes time to load, and it might be कि शायद वो load ना भी हो because of some internet issue. And this is happening with me. Yeah, I think. So because of this Windows 11 new software, actually I think there is some problem. थोड़े time के बाद उसका जो browser है, it gets disconnected from the internet. Although I am available live with you, but it is not happening right here. Let me close and check again. Meanwhile, if you have any questions, I can take that up. Let me try to set it up again before that. Yes, it is difficult. Sure, if anyone wants to ask something till now, any faculty or any of the students, I think so many students from different diploma has also joined. If anyone have any query. So Sir? just, yeah, please. સર જેમ કે ગુજરાતીમાં બોલું ચાલશે? Yes. તો હવે જેમ કે પેપર ઉપર સ્કેચ ડ્રો કર્યું છે તો એને આમાં પેસ્ટ કરી શકીએ છીએ અપલોડ કરીને? યસ, તો આમાં શું છે કે તમે તમારી પાસે સમજો ઇલસ્ટ્રેટર નહીં તો કોઈ બી બીજા ટૂલ હોય, 3D ટૂલ, એને DFX ફાઇલ હોય તો તમે એને આમાં ઇમ્પોર્ટ કરી શકો છો. નહીં તો તમારી પાસે હેન્ડ ડ્રોન બી જે કંઈ બી હોય તમે ઇમ્પોર્ટ કરી શકો છો, અને આનામાં ટ્રેસ ટૂલ આવે છે. ટ્રેસ કરીને એના ઉપર તમે સોફ્ટ પેટર્ન બનાવી શકો છો. I hope that answers the question. Yes, thank you, sir. Prashant, she is asking if they have created some design. So many students are creating so many different types of design based on different themes in our as per our curriculum. So I think she wants to ask if she has created some design, then can she use it as a fabric design? I mean printable. No, so fabric में क्या होता है कि fabric is a little bit difficult. Fabric has two three things. Fabric में एक पहली चीज होती है कि जो आपका surface look आ रहा है, which you can take from a photograph. तो आपके पास अगर कोई फोटोग्राफ है आपके फैब्रिक की, तो आप उसको फोटोग्राफ को ले सकते हैं. उसके अंदर एक और चीज होता है विच इज कॉल्ड टेक्सचर मैप. जैसे हमने जब देखा ना कि नेट्स में जब हमने जूम किया तो हमको नेट का और या डेनिम का टेक्सचर दिख रहा था. देयर वाज अ 3D इफेक्ट ऑन. सो उस पिक्चर पे यू हैव टू अटैच अ टेक्सचर मैप. नाउ टेक्सचर मैप क्या कर सकते हैं कि आइदर यू क्रिएट इट, और इंटरनेट पे देयर आर लिंक्स जहां पे आप जाके फ्री टेक्सचर मैप सर्च कर सकते हैं, एंड यू कंबाइन दोज टू थिंग्स, योर पिक्चर एंड द टेक्सचर मैप, एंड यू कैन क्रिएट अ फैब्रिक ऑफ योर ओन. अब वो फैब्रिक हम सीधे टी शर्ट पे या कहीं भी आपका जो डिजाइन है उस पर पेस्ट कर सकते हैं. सो यू कैन डू इट, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है. यू हैव टू प्ले विद इट. उसमें थोड़ा लाइटिंग भी चेक करना होता है, टेक्सचर मैप की. Okay. Lakshmi, is it clear? Yes, ma'am. Okay. So Any other student? Before that, Unnati, Yes, actually Dharma, go ahead. my browser is not working. जो issue था ना, मैंने I had to reconnect before that again in this. So वो issue वापस से आ गया है. So what I would recommend is you can share your browser and just show the link which I have there, and I think that will be better, because now I will not be able to show that link because my browser is not responding. So if you can want open, me to share? yeah, you share, and please share your browser. Chrome will do, and then I will Okay. guide you. Okay, allow me, sir.
Prashant, is it visible? It is visible. Can you go to a new tab and just type Kamla Tech, KAMLA? Okay. On the top, This one? on the URL browser. URL पे. KAMLA. Is it visible? It It's is visible. open. Yeah, you can go to the first link. इसमें you can go to 3D garment section. Top में you will see 3D garment. Okay. So basically I wanted to, जो मैंने अभी बनाया है, I wanted to put it live on the web and show you, but actually because my browser is not responding due to some conflict between the Teams and browser or something and Windows. So this is how you can put whatever you have made. This is how you can put it on the internet for other people to go and interact with. So it takes some time to load because the file is around 15-16 MBs. And again, depending on what details you want, you can reduce the file size or something like that. But yeah, I think it should load in some time. So this 3D model can be done interactively. So you can interact with the model. You have to wait for some time. It will take some time to download, I think, if your internet connection Yes, it's loading. Yeah. Hopefully it works. Most of the time the demos won't work. That's okay. We can wait for that. If you want to convey anything else. Okay, let it load. What I will do is I will show some pictures on the project I had worked on, how I had Okay. taken the pictures. I will take the screen away and let me show. So now you can see these pictures. Yes, yes. Yes, sir. Okay. So these were some of the renders, the basic things when I started with. And this is, I was working on a smart clothing, wearable clothing. These are some of the pictures of the stitch lines and all. I was trying to experiment. So this was the final vest which I had designed. This had a compression zone on the chest, and it's made of a stretchy fabric. And basically this is, yeah, you can see this is the portion where I put my electronic device, which actually senses your heart rate. So this was a different project, but because of the rendering portion, I had to learn this on this clothings and all. So you can see different renders are there, multiple photographs. So now you can see the device is there, and device can be attached onto the on the garment. So some of the different options you can create and show it to your customers, that how the product actually looks and all. And then you can obviously Prashant, on my screen, I think it's open. Is it visible? just you will have to share it again, I believe. Okay. Yeah, I'm stopping sharing. Yeah. Your screen is not visible. Now is it visible? Yes, ma'am. Yes. So this is what I was talking about. So if you have any such kind of design, you can just upload it on the internet, and it's very easy to do. It's not very difficult, and this is interactive. So if Unnati, if you want, you can just grab it and drag it here and there. Yeah. So now what she's doing. Yeah. I'm doing it. Right. I hope it's visible to everyone. And if you want, you can scroll your mouse and zoom, and you will be able to see the weaves also. Yes. It will take some time to I refresh. did it. Is it visible? It will take a time to refresh, I think. Yeah, now it is visible. So, Yes, ma'am. All the students, can you see this particular fabric structure? Yes. When I'm Yes, zooming, ma'am. it's Yes, showing ma'am. the Yes, fabric structure. so there are a lot of possibilities. If somebody is from a garment design or a fashion design point of view or a perspective, which I exactly am not. I'm more of an like a hardware or engineering kind of a guy. So they can explore this, and there are a lot of possibilities. There are a lot of videos which are available on YouTube. You can try and use this. And this software is for trial. It is 30 days. It is for free. So you can anyways get an email, work on it for 30 days.
and again you have a lot of techniques to use it again longer, more 30 days more and all. So that techniques I cannot describe here, but you are smart, you can try to figure out those techniques. So ये कर सकते हैं Prashant, करके. it is even showing the drape also. It will show everything. So इसमें Yeah. and again if you leave your mouse, उसको if you pan out and leave your mouse, it will automatically rotate also. So it will keep on Yeah, it's rotating. rotating. Yeah. Yes, it's automatically Auto rotating. rotating. So it gives a very nice feel to your client and all. And again, if you want to create a portfolio which is of like 2021 kind of a generation, you should always go in for this kind of a tool where somebody looking would be understanding, okay, you have a proficiency, मतलब आपको नए tools भी आते हैं. Sorry, actually मैं बीच बीच में English में बोल देता हूँ. So इसलिए I think इन चीज़ों को use करके, इनसे interact करके you can do this. And I think Unnati, if in your college also you can discuss with them for academic licenses. Yes, If you yes. have the option, or if you can also do it for each person, maybe you can get a trial for 30 days. So that also can be a way जहाँ पे you can explore it. And as I said, इनके webinars होते रहते हैं regularly, so you can learn a lot of things from this. So this is a very simple thing I am showing. अगर आप Glow की websites पे जाएंगे and you can see there are a lot of very fancy designs, there are a lot of laser cutouts, there are a lot of frills and all. सब कुछ बन सकता है. Means even the bridal gowns जो होते हैं, even they are able to make the pleats and everything of the bridal gown on this, and there are techniques available for that. So you can go in and have a look at those kind of things, because I think I know for girls this is not a very appealing kind of a garment which I am showing here. That's it. So I think that's No, all. technically, as per technical knowledge, Verma, what you have showed is very much useful for all the students, I think so, and even for us, the faculties also. Yes. So my point of view was only to convey this tool and not much on the garment design, which actually I am not an expert on garment design. So I hope this will be helpful. And if you want to upload this, there is a very if you can go to the new tab and just type in Google Model Viewer. So the code is there on HTML. If you put that code and this file, then your file will be uploaded on internet. So that is also very small tutorial. I wanted to showcase that, but because my browser is not responding, I am not able to showcase that. So It's okay. Can I do something about it? no, it will be difficult because there's some coding involved in that. But if you, on the next tab, if you can open Google search and open Google Model Viewer, if you can just type in on the next tab, create a new tab, or maybe on the this tab, same tab itself. Google. Yes, Prashant. Hello. Yeah, so Google Model, MODEL Model Viewer. Okay. And press enter. Let's see what comes. It will take some time. Yeah, so the first, go to the first link. Okay, so this is a small snippet of code. So the JavaScript coding and everything is done by Google. So you can, that is available on this link. So you just put this in your HTML script on your website. And below here, the model viewer, it's only 1-2 line of code wherein you will have to paste your file. So as I said, there was a test GLB file. Whatever your model or t-shirt is, जो भी आपका model, आपका 3D file output आता है, yeah, please be on the top. So जो भी आपका आता है 3D फाइल, उसको आप यहाँ पे .glb करके astronaut.glb लिखा है, उससे रिप्लेस कर सकते हैं एंड मॉडल का कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. एंड एज यू कैन सी, आपको राइट साइड में उसका मॉडल दिख रहा है. अब इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बहुत ही हाई रेजोल्यूशन मॉडल डालते हैं, जैसा कि मैंने डाला है मेरे वेबसाइट पे, जहाँ की आपको व्यूज दिख रही है, तो आपका मॉडल की साइज बड़ी हो जाएगी. यहाँ पे जो गूगल ने डाली है, ये मॉडल की साइज छोटी है बिकॉज उसने क्या किया है कि बिल्कुल फ्लैट सर्फेसेस यूज किए हैं. हम जितना 3D में हाई रेजोल्यूशन में जाते हैं, उसकी जो मैशिंग होती है, जो मैश साइज होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस होने से वो ओवरऑल स्ट्रक्चर नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और साइज बढ़ जाती है. बट इसमें आप देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ फ्लैट सर्फेस. तो फ्लैट सर्फेस से फाइल साइज छोटी होती है. सो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या दिखाना है, योर फाइल साइज कैन बी स्मॉल और बिग. सो you can do that settings in your export when you are exporting. आप जब मॉडल एक्सपोर्ट करते हैं क्लो से, तो वो भी हो सकता है.
So I think that is all from my side. अगर कुछ questions हैं, you can ask, and otherwise we can close it, I think. Okay. So we are open for the questions now. If anyone wants to ask something. Any student or any faculty? So tutorials are available on YouTube. Yes, it is available. I think sir initially only said you can go to all the webinars and all the tutorials available on the website. Hello. Yes, sir. So, thank you, Prashant, for such a lovely talk. So really, I went through such software for the first time. It was really very interesting. Yeah, because I deal less with the garment, but you have presented it so nicely that I think anyone can start and practicing. So thank you very much. Thank you, Unnati Madam, for having such a lovely webinar. So this Thank was you so much for sharing your presence, sir. Yeah. So this will be very useful to the students, I am sure. That's Korani, sir. Verma, can you hear? Yes, I can hear. Thank you, sir. It's very nice to see you after so long time. Yeah. Okay. And, So thank you very much. The presentation, I think, was I not prepared much on this, but I just wanted to give a glimpse of things which are possible. And I think the young and budding students, they are more enthusiastic than us now, and I think they can take this forward. Yeah. So I think software and age are inversely proportional. So youngsters can pick up very fast. This is the beauty of Korani, sir. He is able to involve anything in technical terms. Okay. So really, Prashant, you should, such webinars should be there, more in number. So Unnati Madam, thank you very much. And Prashant has justified it 100%, I'm sure. Okay. Thank you so much, sir. Okay, so thank you very much. Okay, thank you very much. Yeah. Okay, anyone else want to ask something? From different diploma, so many students have joined. Twinkle, so many passed out students have also joined. I recall when our professor used to ask us this question. I think if there are no questions, then there are only two possibilities. Either they understood everything or they didn't understood anything. So I think the second one is the. No, it's not the case. We have passed from this phase, so I can understand the students' hesitation. But no need to hesitate. Yeah. So anytime if you want to ask connect, anything, anytime if you want to connect with me on this, how to do something, if you are stuck on any technical project or you want to do something, so you can just reach me out. You have seen my website, so my contact detail is there on my website, and we can take this forward. Why I was saying this is good is in terms of and because this is a girls polytechnic college, if you are able to grasp or learn such kind of a tool, spend some time. I would say if you are only able to spend couple of months on this tool, you will be very proficient. And once you do this, now what is happening after the COVID scenario, a lot of freelance assignments are coming. So there are good portals, Upworks and freelance portals, where you can register and then you can showcase your let's say 2 3 4 models, and then you will get great. a lot of kind of freelance assignment. So this is a very useful tool. You can sit at your home and work, don't need to go in a shop floor, because garmenting may, to an extent, if you are also a designer, at least you will have to visit a shop floor once in a while to see कि वो बराबर cutting हो रहा है कि नहीं हो रहा है. But this is a good tool, and again as I said कि this is a new tool. So new tool में the population of people who are already there is less. So this is a good chance for you to come up and grab these opportunities, learn this, and as I said, creativity is upon you. The software has some limitations and boundaries, but again you can add pleats, you can do a lot of things, add fabrics, a lot of things you can do. So I think, and maybe you can also start your own, after learning you can start your own YouTube channel of tutorial for cloth in Hindi or Gujarati, so that a lot of state-wise people are catered.
So that is also an opportunity. So there are a lot of opportunities. True. As always, Prashant, you are very informative. If no one is having any query, can I ask something? Ma'am, Yes, Twinkle. મને છે એક query. Yes, go ahead. हेलो प्रशांत सर. Hello. आपने जो वो हार्ट रेट का वो मशीन ऐड किया था, तो ये एप्लीकेशन तो मतलब ये सॉफ्टवेयर गारमेंट डिजाइन का है, तो आपने वो मशीन कैसे ऐड किया था? मशीन अब जैसे क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि देयर आर लिमिट लाइक जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है विद इन विच इट कैन वर्क. तो मैंने इसमें क्या किया था कि मैंने एक प्लेन चूज किया था. अगर आपने एक फोटो देखी हो, मैंने दिखाई थी बीच में, मैंने एक फैब्रिक की तरह एक प्लेन चूज कर लिया था विच आई मेड इट ऑफ अ प्लास्टिक काइंड ऑफ अ मटेरियल. ठीक है, तो हमारे पास फैब्रिक से डिफरेंट, तो उसको मैंने लेट्स से आई चूज अ प्लास्टिक काइंड ऑफ अ फैब्रिक, और वो करके उसके देयर वाज एन ऑप्शन टू एक्सट्रूड. देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सट्रूड आई थिंक इन दिस. अब मैं भी भूल गया हूं, थोड़ा टाइम हो गया है. So वो एक्सट्रूजन करके I made a shape and extruded it and made it in terms of a device. बाकी snaps and all are already available as an accessories, but you can still put your, and again ये मैंने simply किया था क्योंकि मुझे device में बहुत details दिखानी नहीं थी. But if you have your own model, a heart rate monitoring device जिसका आपके पास 3D model पड़ा है in any other software, so use that, import from that software and flow के अंदर उसको import करके you can again put it there. और इसमें जैसे एक और चीज जो एडवांस लेवल पे होती है वो ये है कि जो मैंने दिखाया वो अभी एक खाली एक डेमो तक सीमित था. बट इफ यू वांट टू डू अ सिमुलेशन ऑफ अ रनिंग पर्सन, तो ये फ्लो के अंदर पॉसिबल है. इफ यू ऐड अ रनिंग मोशन इन दिस, तो जब वो रन कर रहा है तो उसका क्लॉथ की ड्रेप कैसी आ रही है, वो कितना हवा में उड़ रहा है, ऑल दिस कैन बी मॉडल इन द सेम सॉफ्टवेयर. एंड लॉट ऑफ गेम्स, लेट्स से आई थिंक पबजी तो बहुत लोगों को पता, आई डोंट नो गर्ल्स में पॉपुलर है कि नहीं, बट these kind of games है अभी ये यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है वर्मा. राइट. सो पबजी काइंड ऑफ अ गेम में भी जो हमारे आप देखते हो कितने ड्रेसेस वो लोग बेचते रहते हैं एंड ऑल, सो एंड मुझे बहुत नहीं पता एग्जैक्टली, बट दे हैव लॉट ऑफ ड्रेसेस एंड ऑल. सो दीज आर काइंड ऑफ ड्रेसेस भी जो होते हैं वो एनिमेशन में डालने के पहले यू कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम क्लो. सो आप क्लो में वो गारमेंट एक्सपोर्ट करके इस माया या कोई भी सॉफ्टवेयर में डाल के उसको रनिंग सिमुलेशन बना सकते हैं. इवन यू कैन मेक अ मूवी आउट ऑफ इट जहाँ पे वो कुछ काम कर रहा है एंड योर 3D क्लॉथ इज बीइंग worn by him, or 3D cloth is responding accordingly, because these are 3D textures which can respond according to body movement and body shape. So इसमें अगर मैं दिखा पाता आपको तो क्लो में भी when you there are poses, so when you change, currently वो ऐसे खड़ा था, if you change the pose like this also, तो garment उसके हिसाब से ऊपर आ जाएगा जैसे हमारा realistic garment आता है. So again, lot of possibilities when you go on YouTube and you use Google. These are the best teachers now, I believe. अगर आपको बिल्कुल लिमिटेड पढ़ाई करनी है, not you want to go and go through the complete syllabus one by one, so आपको जहाँ पे पहुँचना है वहीं पहुँचना है, you can use this Google and quick tools. At least you will learn something to create whatever you want. सर इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे मैंने एक थीम पे डिजाइन बनाया है, मतलब पूरा गारमेंट का कलेक्शन बनाया है, तो मैं उसका पूरा वर्चुअल रैंप वॉक जैसे भी बना सकती हूँ घर पे. बना सकते हैं आराम से. थैंक और यू. उसमें फॉल ड्रेप सब दिखाई देगा, मतलब वो रैंप, और इसके एक्चुअली मैंने इसमें दिखाया नहीं, इस फ्लो के अंदर ऑलरेडी एक स्टेज ऑलरेडी मौजूद है. हाँ, so you just import that stage. I think if you are already working with that, then it's okay. Yes sir. Thank you sir. Welcome. Okay, Twinkle, I think it's all. Yes ma'am. Anybody जिसको लग रहा है गुजराती में पूछना ठीक नहीं है, I think hesitating. કોઈ ને ગુજરાતીમાં પૂછવું હોય please, તો પૂછી please શકો છો. જરાય હેઝિટેટ થવાની, ગભરાવાની જરૂર નથી કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને. કોમલ, લક્ષ્મી. સર હર્ષિતા. યસ. સર આમાં ગારમેન્ટ છે તો આપણે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ? પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન એટલે ફાઇનલ ગાર્મેન્ટ એટલે શું કહેવાય, હું અન્ડરસ્ટેન્ડ નહીં કરી શકી ક્વેશ્ચન. સર બેગ છે, પછી પર્સ. yes, anything from fabric and all आप बना सकते हो इसके अंदर. एक्सेसरीज भी बन सकती है. Yes, I think she is asking about the accessories. કોમલ, accessories માટે પૂછે છે બેટા? યસ મેમ. Yes, so sir said anything related to fabric you can design. યસ થેન્ક યુ સર. Yes, anyone else?
सर, हेलो सर। यस यस। Yes, yes. सर, इसमें हम अपनी वीव डिजाइन मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि हमें ट्विल चाहिए, सैटिन चाहिए या कोई और वीव पैटर्न चाहिए उस हाँ तरह तो से। यस हम कर सकते हैं। लेट मी क्विकली गो देयर। इफ यू कैन सी द स्क्रीन। I will stop sharing, Prashant. हाँ हाँ या प्लीज। Okay. आई थिंक इट इज शेयरिंग नाउ। Yes, Yes, sir. yes. ओके सो अभी फैब्रिक के लिए दे हैव ऑलरेडी गिवन लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू आर देयर, बट जैसे मैंने कहा कि इसमें एक एंड लेट मी ट्राई इफ आई कैन शो यू दैट। आपको दिखा सकता हूँ जैसे कैनवास जैसे आप जस्ट लेट मी गो थ्रू सॉरी। तो ये आप जैसे यहाँ पे हवर करेंगे आपको कैनवास फैब्रिक दिख रहा है, उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज जिसको हम थिकनेस एंड ऑल। आई डोंट नो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं बिकॉज समटाइम टीम्स में आता It नहीं। is visible. ओके एंड सो दिस आर डिफरेंट फैब्रिक। कैनवास है, ट्विल आप बोल रहे थे तो ट्विल मिलेगा आपको। अगेन ये मैं जूम करूंगा तो दिखेगा, बट जूम के बिना इतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको। ऑक्सफर्ड है। इसमें जैसे ऑक्सफर्ड आपने चूज किया, यू कैन चेंज द कलर, कलर चेंज का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको टेक्सचर ट्विल का मिलेगा, या अब जैसे ये फ्लश है सो ऐसे करके इसके साटीन है। इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे हैं, स्ट्रेच साटीन है, सो इसके अंदर प्रॉपर्टीज है। और इसमें आप Prashant, that is inbuilt library. दिस इज इनबिल्ट लाइब्रेरी एंड दिस इज इट कम्स विद द सॉफ्टवेयर। तो पॉलिएस्टर है तो पॉलिएस्टर का आ गया। फिर जैसे हम इसमें आगे इसमें लेदर भी होगा, सिल्क Okay. है हमारे पास, वुल है, वुल भी आपको दिख सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको खुद का कुछ नया नहीं करना है, आपको 12 वीव में आपने बोला कि मुझे कुछ करना है, कुछ एक स्पेशल इफेक्ट लाना है, सो 12 वीव में हम जाके लेट्स से हमने चूज किया और यहाँ पे प्रॉपर्टी एडिटर में जाएंगे एंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे पहले। ओके सो दिस आर फैब्रिक। अब मैं ट्विल में हूँ, कॉटन हैवी ट्विल यहाँ पे दिख रहा है, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर जो अब मैं उसको हाइड कर रहा हूँ। ओके चैनल ओके सो दिस इज द प्रॉपर्टीज में आप जाके इसको अभी भी क्लियर बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई अच्छा इसमें क्या है कि एंड टू एंड प्रोडक्शन काम होता है। इफ यू हैव अ सप्लायर, आप सप्लायर का नाम सब कुछ डाल सकते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं गया था। फैब्रिक टाइप आपको मैट रखना है, शाइनी रखना है, क्या ग्लास रेंडरिंग रखना है, लेदर रखना है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। टेक्सचर जैसे मैंने बताया था, टेक्सचर की मैप आती है, तो टेक्सचर की मैप हम इंपोर्ट कर, जैसे इसमें ऑप्शन दे रहा है, हम इसमें आपको शायद नहीं दिखेगा क्योंकि नया विंडो खुल गया। सो नए विंडो में यू कैन चेक एंड इंपोर्ट द टेक्सचर। तो टेक्सचर भी आप कर सकते हैं। आपको फैब्रिक का कलर मैंने ऑलरेडी करके दिखाया है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी भी आपको ट्रांसपेरेंट फैब्रिक लेना है, आपको समझो कोई जैसे वो लेस में या कुछ में बनाते हैं, आई थिंक लेडीज में ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक, तो वो भी कर सकते हैं। रफनेस चेंज कर सकते हैं आप उसकी। सो इवन विद अ गिवन थिंग अगर आप उसके अंदर ही थोड़ा बहुत करें तो आप उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन ला सकते हैं। और आपको जैसे मैंने कहा सेपरेट भी लाना है तो अपनी फोटोग्राफ्स लेके आइए और इसके अंदर डाल के विच शुड बी अ गुड क्वालिटी फोटोग्राफ, और इसके अंदर टेक्सचर मैप एंड नॉर्मल मैप में उसको मर्ज करके स्पेसिफिक, एंड देन यू कैन मेक योर ओन फैब्रिक ऑल्सो। So Prashant, it means we can use something other than the given library also. Yeah, you can use the format. If I want to use a jacquard fabric, for example, yes, then what I need to do? If you want to use the jacquard fabric, either you take a scan of that or photograph of Okay. that, and then Yes. there is you have to go. There would be a tutorial on this. Okay. You have to go and merge the texture map. So let's say you imported the photograph here, and then that is the ZFab format. And then you have to, in the ZFab format, here in the property, you have to add some texture files, Okay. normal map and texture map and roughness map. These are the three maps which you do generally import. So that will give you that 3D proper effect of the fabric. And once you import or select proper texture map and this thing, there are also some settings, then you will be able to put the jacquard design also. So if you see Okay, on YouTube, there are some of the designs of videos of Flow where they have done this kind of thing. Okay, fine. So લક્ષ્મી જે ક્વેરી તને હતી કદાચ એના માટે પણ તું આ વસ્તુ યુઝ કરી શકે, ખ્યાલ આવ્યો તને? Yes, તે ma'am. તારી બનાવેલી ડિઝાઇન હોય એને પણ આની અંદર તારે બતાવી હોય તો તું બતાવી શકે છે। और इसमें मटेरियल्स भी हैं दूसरे, सो यू कैन गो देयर। हार्डवेयर स्ट्रीम्स में भी यू कैन हैव लाइक जिपर्स हैं, बटन होल्स हैं, सो बहुत अलग अलग तरह Okay. के। तो ट्रिम्स भी इसके अंदर है, एंड देन अगेन ट्रिम्स आप खुद भी बना सकते हो। आई थिंक वो Print is available there? ट्रिम्स आई एम टॉकिंग ट्रिम्स। Trim, okay. हाँ, प्रिंट तो आप आई थिंक कर सकते हो, देयर शुड बी एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट। आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके प्रिंट कर सकते हो, और ये प्लॉटर में, एंड योर पैटर्न कैन बी पुट इन द प्लॉटर डायरेक्टली। सो जो पैटर्न्स हमने बनाए थे वो आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो यहाँ से।
Prashant, can you please tell which are the recent companies which are using this particular software right now? I am not much aware of it, but a lot of companies. So if you go on Flow website, a lot of companies have started using it because of this 3D kind of a thing. I cannot give you very specific names, but the thing is Okay. that because there is a transition period, because इसमें क्या है कि lot of designers right now have been working Yes. since 8, 9, 10 years in Adobe Illustrator kind of a scenario. Right, So they right. work on Illustrator and then they share the, in even the designers with whom I have worked in my current assignment with, that's a different product protection where. So they also give you a 2D kind of a thing and drawn and all. So for them also to learn this software, it takes some time. And again, इसमें क्या Yes. होता है कि the interpretability, these are two different companies. So the same shortcuts will not work. जिसने अभी 8 साल 9 साल काम किया, now they are working like lightning. वो W दबाएंगे तो विंडो खुल जाएगी और कुछ एल्स दबाएंगे तो नया Correct, टूल आ जाएगा, correct. हमको समझ में नहीं आएगा वो कर क्या रहे हैं करके. So that proficiency level पे आने के लिए take some time. But Yes. but इससे क्या हुआ है, because of this, lot of people who were not originally from this domain have also started coming to this domain because of the ease of use of this kind of a software. So Yes, yes. Because I think it's very user friendly. it is a user friendly. It has And the tricks. simulation properties are also excellent because we can see even the drape in 3D, in 2D, all the seams, all the trims, and so many options are there. Right. So that is there. Okay. બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટ ને કાઈ પૂછવું છે? ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર, સોરી, સેકન્ડ સેમેસ્ટર, ફાઇનલ યર, passed out students. So this is the one I was talking about कि जैसे हमको पोज भी चेंज करना है तो आपका पोज भी चेंज हो सकता है, मतलब जैसे मोशन का ये बहुत अच्छा. स्मॉल इलस्ट्रेशन है, बट मोशन करने Twinkle, से I think this is important for you. What you asked about. Yes, ma'am. Okay. तो ये तो बहुत ही बेसिक, आई एम नॉट, व्हाटएवर आई एम शोइंग इज वेरी बेसिक, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन. Your basic is advanced for us. No, means Right, I'm right. saying in terms of capabilities, a lot of things can be done on this. Correct, correct. And इसके अंदर for sizing also very good thing is कि sizings are available. Let's say female, तो female में if you go for where is the sizing module of, not this one, sorry. Okay, kids and female are also available there. Okay, kids, right. female, yeah, everything available. Sizes, what I'm saying is like like US में Yes, they have team different standard. sizes. So US messy, curvy, so you can have 2, 4, 6, 8, 10. So कोई भी size चाहिए तो you can just Great. Put that here. So इसमें I think in the same model, once you have made this, let me try if I can do that. You can still change the size, and I don't know it will fit or not, but let me see. So now you can see the same model, you can put it and simulate it. Simulate करने के बाद वो actually उसको आ नहीं रहा है t-shirt. So I'm sorry for that. so those are those options are there. Can you select a kid? I can. Okay. I think kid आएगा नहीं. Hair and motion selection, everything is available there. Kid maybe, I don't know, it will come on. Okay, it is there. Let's simulate. So उसमें marking नहीं है, so let me take it out. Sorry, फंस गया है. Okay. I have. Sorry for that. So उसपे actually you have to attach the on the body points जैसे मैंने आपको पहले बताया था, and then you can do this. Correct. So let me stop sharing now. Okay, so that's all. So I think if there are no questions, then. Okay, જો કોઈ સ્ટુડન્ટ ને હવે ક્વેશ્ચન ના હોય તો આપણે ફાઇનલ કન્ક્લુડ કરીએ. કોઈને કઈ પૂછવું છે? सर एक क्वेश्चन है सर. सर Yes, ये sir. सिर्फ मतलब एप्रेल्स के लिए यूज हो सकता है या फिर हम ऐसे मतलब बेडशीट है, मतलब घर में यूज होने वाली चीजें है, मतलब जो गारमेंट वाला मतलब जो फैब्रिक का है उसमें भी कर सकते हैं? मतलब आप कर सकते हैं इसमें. ओनली थिंग इज कि क्या है कि आपको फॉल और वो देखने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, बेड जो है ना, बेड का मॉडल प्रोवाइड करना पड़ेगा. जैसे हम अभी इसके अंदर जो मेल एंड फीमेल मॉडल्स ऑलरेडी हैं, तो दोज आर हार्ड बाउंड्री कंडीशंस उसमें होती है. सो दीज आर हार्ड बॉडीज जहाँ पे यू हैव अटैचमेंट पॉइंट्स एंड ऑल. सो बेडशीट अगर होगा तो उसके लिए आपको एक मॉडल खुद का बनाना पड़ेगा 3D में बेड का, वेर इन यू कैन जस्ट लेट इट फॉल, एंड आप फिर बेडशीट का फॉल देख सकते हैं.
ऑल्सो यू कैन ऐड प्रिंट्स के लिए आपको फोटोज ला सकते हैं विच कैन बी अगेन रिपीटेड ऑन एट सर्टेन इंटरवल्स, तो वो फोटोज से हम प्रिंटेड फैब्रिक भी दिखा सकते हैं बेडशीट में. सो इट इज पॉसिबल, बट उसके लिए आपको जैसे मैंने कहा ना एक बाउंडिंग 3D बॉडी लेनी पड़ेगी, जिसके ऊपर ये फॉल हो सकता है आपका बेडशीट, अगर आपको फॉल देखना है तो. बाकी आपको मे बी लाइक बेडशीट अगर खाली मेल बॉडी फॉर्म पे देखनी है तो उस पर भी रख के देख सकते हैं, बट इट विल नॉट मेक मच सेंस. हर्षिता, क्या लगे Yes, ma'am. Yes, yes. Thank you, sir. वेलकम. Anything else? Okay, so let me conclude the session. Prashant Verma sir, thank you so very much for giving so much information about so many things related to this simulation software for garment. Goswami sir, are you there? He is a bit busy in a duty, so okay. Prashant, from the bottom of my heart, I am thanking you to spare your time and share the knowledge. I think someone wants to ask something. Somebody raised their hand. Yeah. Anyone? Yes, ma'am. Hello. Yes, yes, yes. Basically, I am from LD College, Ahmedabad. Yes, sir. Welcome, अभी sir. मेरा इंजीनियरिंग फील्ड नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ और Okay. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लिया है, ये जो डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है ना उसकी तरफ से एक डिजी बुनाई करके एक सॉफ्टवेयर है, आप ओपन सोर्स है वो. Okay. तो उसमें विविंग और इस तरह का सिमुलेशन भी हो सकता है. तो वही बताने के लिए मैं पहले से स्टार्ट अटेंड किया है लेक्चर पूरा, ये सर का बहुत ही बढ़िया है और वो ओपन सोर्स है, तो हम स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही अच्छा हो सकता है. बस यही बताना था. Yes, thank you. डीजी बुनाई Okay, हाँ, thank डीजी you. बुनाई Thank you करके for है, that. सॉरी व्हाट इज द स्पेलिंग क्या है उसकी? DIGI बुनाई BUNAI. Can पूरा you please, गवर्नमेंट का ये डिजिटल इंडिया की तरफ से. share it in the chat box? आई थिंक चैट बॉक्स आपने हाँ, डिसेबल yes, कर रखा है. चैट बॉक्स इज डिसेबल आई बिलीव. Can you share it in the chat box, please? यस मैम. इसमें आप इंडिविजुअली रजिस्टर करके आप यूज कर सकते हो और बहुत ही वाइड रेंज से उन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, लेकिन क्या Okay. है अभी बहुत ही कम पर्सन है जिसको ये पता है कि ये इस तरह से कुछ है. तो Awareness. आप नहीं. पहली Okay, बार तो right. पहली बार आप इंस्टॉल करोगे ना तो उसको सामने से कॉल आएगा कि आपको कोई इसमें दिक्कत हो रही है. अभी हम उसको सजेशन देंगे कि इस तरह से हमें कुछ चाहिए, तो वो अपडेट भी करने के लिए रेडी है, लेकिन क्या है कि अवेयरनेस ही नहीं है अभी इसके बारे में किसी को इसके. तो मैं शेयर कर Okay. देता हूँ लिंक उसकी. ओके, थैंक यू. श्योर, थैंक यू. What is the spelling, please? I Yes did ma'am, not I get am anything share. in the chat box. Yes ma'am, yes ma'am. Wait. Okay, so thank you Unnati, thank you for giving me this opportunity and I thank you everybody who listened to me patiently. थोड़ा इंग्लिश मेरा पता नहीं बीच बीच में आ जाता है, so It's sorry for that. definitely our pleasure, Verma, to have you on this platform. And I think I will again invite you specifically for smart textiles, because that is one of the major area blooming right now. So I think the students should be aware of that also. And that is one of my favorite fields of working. So in future also, please do spare some time for that also. We will stay connected for that. Sure, no problem, thanks. It would be great for me. Okay. And thank you Okay. for inviting our professors from MS also. So it was good to meet Korane sir. Actually, that was a surprise for me also, because today morning only I contacted all of them, and all of them were very happy that Verma Prashant is going to deliver something. So they were very much interested because of your presence. So Thank you. again, thank you for that. Thank you. Thanks हेलो for it. मैम. Yes. Yes, Twinkle. मैं स्टूडेंट्स की तरफ से एक बात बोलना चाहती हूँ सर को.
Yes, yes, go ahead. शेयरिंग दिस सॉफ्टवेयर हमारे इमेजिनरी कपड़ों को जान देने के लिए और हमारे इमेजिनरी कपड़ों को अपने आंखों के सामने देखने के तरीके बताने के लिए थैंक यू very much. Okay, so that's all for today. We will, yes. इसमें चैट बॉक्स नहीं आ रहा है, मैं लिंक शेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ। Yeah, chat box is disabled, that's why. So Okay, Yes. it's okay. Can you please tell me the spelling of it? or maybe Yes, you can ma'am. email Sorry? Yes, I can. Yes, yes, tell Spelling me. D-I-G-I D-I-G-I? B-U-N-A-I, बुनाई, बीजी बुनाई। अभी D-I-G-I? बुनाई, B-U-N-A-I, N-A-I। आप यस, आप सर्च करो, उसमें आ जाएगा सीधा ही क्रोम। Okay. और अभी उसका हाल ही में विद इन अ मंथ अपडेट वर्जन आने वाला है उसमें तो हम चेकआउट डिजाइनिंग, डोबी डिजाइनिंग कंप्लीटली कर सकेंगे। I think it's BG Bunai, right? यस मैम, यस मैम। आपने सर्च किया क्रोम में आ जाएगा Yes, शायद। yes. so this is If basically what everyone wish, I can share it on the screen. Yes. So Wait a minute. Unnati, I have an engagement, so I would like to Yeah, drop sure. Verma, you can leave. Thank you so thank you much. everyone for your time. Thank We'll you. be in touch. Yeah, great day. thank you. Okay. Namaskar. Bye. Thank you, Namaskar. sir. I think this is it. Can you see the screen? Just a minute, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, BG ma'am. Bunai, this one. The first one. मुझे नहीं पता चल रहा है, कुछ में नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो जस्ट अ मिनट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, और स्टूडेंट को दिख रहा है, इसलिए। Can the student see? Students ने स्क्रीन दिखाई છે? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. હા, એટલે એ જ હશે મેમ। તો પછી એમાં તમે જોવો ને અંદર, તો બધું હશે જ એમાં ડિટેલમાં। ટ્યુટોરિયલ્સ એના હશે, કઈ રીતે લિસ્ટિંગ કરવું આપણું, અને કઈ રીતે સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવું અને કઈ રીતે એને ઇન્સ્ટોલેશન કરવું, એ બી છે। ને બહુ સરસ સોફ્ટવેર છે કોલેજ માટે તો ખાસ, કેમ કે ડિઝાઇનિંગ શીખવાનું, FS શીખવાનું હોય, વિવિંગ શીખવાનું હોય, પ્રેક્ટિકલી સિમ્યુલેશન જોડે આપણે પણ શીખી શકીએ, કરી શકીએ, બહુ સારું છે। ઓકે, તમે ક્યાંથી છો एक्चुअली? હેલો, યસ મેમ, યસ મેમ। તમે ક્યાંથી જોઈન થયા છો? LD ના સ્ટુડન્ટ છો, યસ મેમ। રાઈટ? યુ આર રિસેન્ટલી પાસ્ડ Yes, આઉટ? ma'am. હેલો, Yes, ma'am. અને અમે લાસ્ટ યર વાળા બી જોઈન થયેલા છે LD ના. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ ધીસ. થી જ બિલોંગ કરું છું, બટ હું એલડી કોલેજમાં મારું હાલ જ લાસ્ટ યર ફિનિશ થયું બીટેક, ઓકે, ફાઇન. અને અત્યારે હું ડિઝાઇનિંગ કરું જ છું પોતે। મને એક સર થ્રુ લિંક મળી એટલે હું જોઈન થયો હતો। હું પોતે અત્યારે જેકાર્ડ ડિઝાઇનિંગ અને બીજું પણ ડિઝાઇનિંગ કરું છું, ફેબ્રિક ગાર્મેન્ટ ઓકે, ડિઝાઇનિંગ। ક્યાં આગળ છે તમે? અમદાવાદ કે સુરત? નહીં, સુરતમાં જ છું મેમ, સુરતમાં જ મારી ઓફિસ છે। ગ્લોબલ માર્કેટ છે ને આપણે, ઓકે, હા, ત્યાં કરી મારી ઓફિસ છે। અને એક કોઈ સ્ટુડન્ટ હતું, એમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે ડ્રોઈંગ કરેલું હોય તેને યુઝ કરી શકાય, એટલે મારે ત્યારે આન્સર આપતો હતો, પણ મને એમ થયું ઇન્ટરપ્ટ નથી કરવું, બટ એને હું અત્યારે કહી શકું કે હા, એક બહુ આપણે સુરત, યસ, એટલે સુરત વાળા માટે સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે કે અહીંયા છે ને આપણે જે કાર્ડ ચાલે, તો એ જે સ્ટુડન્ટે પૂછ્યું ને કે એમાં હેન્ડમેડ ડિઝાઇનિંગ એને યુઝ કરી શકે, આમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે, તો એ જેકાર્ડની સાડી માટે આપણે જે કહેવાય ને બનારસી સાડી,
એના માટે ધી બેસ્ટ વે કહેવાય ને યુટિલાઇઝ કરવાનો, કેમ કે એની પર ડિઝાઇન ના 1500 અરાઉન્ડ એના પ્રાઇસ હોય ફ્રીલાન્સિંગ. અગર એ ફ્રીલાન્સિંગ કરે છે ને તો બી એટલે એઝ અ સ્ટુડન્ટ એ રાઈટ. સાઈડમાં બી કરી શકે. જો આવી ઓકે. રીતે કોઈ ડ્રોઈંગમાં ક્રિએટિવ ને ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો હું પણ હેલ્પ કરી શકું. એટલે તમારું નામ શું છે? મને તમારી મારું નામ કોન્ટેક્ટ ઇલેશ. મળશે? ઇલેશ. Nilesh. ઇલેશ. Okay. યસ યસ મેમ. Can I have your contact details? યસ મેમ યસ મેમ. How will you share? I will give you my email ID. Can you share it there? યસ યસ મેમ શ્યોર મેમ. Give me your mail ID. Okay. Can you please note down? Yes ma'am. Speak. सर शॉप नंबर कौन सा है ग्लोबल में? हाँ मैं बता दूंगा सब. विजिटिंग कार्ड भी बाद में भेज दूंगा. पर्सनली भी मुझे मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और Nilesh, मैंने because you are in yes. Surat only, we can definitely be in touch because this particular girls polytechnic is in Surat only. So we Yes can ma'am. Yes be in ma'am. touch and we can definitely explore whatever knowledge you have. Sure मैम. यस मैम. क्योंकि मैं डिजाइनिंग का जब भी जहाँ भी होता है ना तो वहाँ पे मैं किसी भी तरह से अगर मेरे पास लिंक आती है तो पहुँच ही जाता हूँ. इट्स माय पैशन. Good, good, good. And बोलिए even आप good to अपना talk email with ID. your name. Yes, email ID is DTD DTD D for Delhi, D for Delhi, T for Delhi textile D for Delhi again, DTD D फिर GGPS Government GGP Girls Surat GGPS यस मैम. @gmail.com. Can you give me your email ID? Yes ma'am, I am just mailing you. Hi. Okay, fine, fine. Wait a minute. There you go. Okay, all the students, I hope you learned something new today. બધાને Yes, કઈ ma'am. નવું મળ્યું? મેમ Hello? આ જે સરે જે અત્યારે જે ઇન્ફોર્મેશન આપી એના માટે Yes. આપણે એકાદ સેમિનાર કે એવું કઈ રાખી શકીએ? મતલબ આજે સર કહે છે થોડું નવું છે અને અત્યારે જે પાસ આઉટ સ્ટુડન્ટ્સ છે 6 સેમના એમને એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજની બી ઇન્ફોર્મેશન મળશે તો એ લોકોને એડમિશન માટે બી થોડું સારું રહેશે. મતલબ જે D2D એન્ટ્રી લેશે હવે અત્યારે. હર્ષિતા, મને ખ્યાલ નહીં આવ્યો તું શેના વિશે પૂછે છે? મતલબ મેમ જે આ સર જે સ્ટુડન્ટ્સ છે આ એલડી કોલેજના એમણે જે ફિલ્ડમાં ડિગ્રી કરી છે એના વિશે બી થોડું જાણવા મળશે અને આ સર જે મતલબ જે ફિલ્ડમાં કામ કરે છે એમણે કીધું એના વિશે બી થોડું જાણવા મળશે તો સારું રહેશે. હા, એટલે આપણે એમની સાથે એક સેશન અરેન્જ કરીશું. હા, યસ મેમ. Yes, Elish, I have got. Yes ma'am. Okay, fine. Okay. Okay. Then we'll be Thank you, Elish. personal. Oh, it's my pleasure. અને હું એક સ્ટુડન્ટ જ છું એટલે મને બી ખ્યાલ છે કે પ્રેક્ટિકલી જેટલું શીખવા મળે ને એ બહુ સારું કહેવાય. Correct. It's good to share અને આ the તો knowledge always. કેમ કે આ મને બી આવી રીતે જ ફાઇન્ડિંગ કરતા મળ્યું એટલે હું એક ખાસ એડવાઇસ તો ના કહે પણ મને જે ખબર છે ને એ હું તમને કહું. ના, મારે જે ડેફિનેટલી આપણે ટચમાં રહીશું અને જે કંઈ પણ શેર કરી શકીએ તો નોલેજ આપણે સ્ટુડન્ટ સુધી બધા સુધી પહોંચાડીશું. શ્યોર. અને હું તો એવો બી પ્રયત્ન કરું કે ત્યાં જે ક્રિએટિવ સ્ટુડન્ટ છે ડ્રોઈંગમાં ઇવન જે સ્કેચની વાત કરી તો એને બી હું હેલ્પ કરી શકું. બરાબર, મારા જે પ્રોફેશનમાં યુ ડુ વિઝિટ, તમે એકવાર આવો ગર્લ્સ પોલિટેકનિક સુરત 8 ગેટ છે. યસ મેમ. હા. એકવાર આવો, વિઝિટ કરો. વિલ ડેફિનેટલી બી ઇન ટચ. શ્યોર મેમ, શ્યોર. હું આવીશ, ચોક્કસ આવીશ. અત્યારે ઓફલાઈન થઈ ગયું છે કે ઓનલાઈન છે? નહીં, અત્યારે ઓનલાઈન જ ચાલે છે બધું. બરાબર. બટ યુ ડુ કમ, વી ફેકલ્ટીઝ આર ધેર. યસ મેમ. આઈ વિલ
મિનિટ શ્યોર. હું તમને મેલમાં મારો કોન્ટેક્ટ મોકલી દઈશ, પછી Yes, આપણે yes. વાત કરતી રહીશું. બરાબર? Sure. થેન્ક યુ. Okay, thank you. Okay, students, thank you so much for attending. I hope you learned something new and Yes, ma'am. explore this field ahead. Okay? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sir, Thank you. Bye. Keep learning. Thank you, ma'am. bye, ma'am. મેમ મેં મેલ કર્યો છે આપને, બરાબર? Personal. Yes, Elish, sorry. I got your mail.